السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم لوگوں نے نظریہ پاکستان کا چیپٹر پڑھا تھا، تو اس کو آپ فاطمہ بیٹے آپ پڑھیں ذرا اس کو جہاں سے چھوڑا تھا اس دن. فاطمہ جی بیٹا پڑھیں. جو کہاں سے چھوڑا تھا مجھے مارک نہیں مل رہا. مس کہاں سے چھوڑا تھا؟ اوکے بیٹا پڑھیں فاطمہ. آپ کو آواز آ رہی ہے نا، تو آپ اس کو پڑھیں، مائک کو انمیوٹ کریں اور ریڈنگ کریں. جویریہ آپ پڑھیں بیٹا. یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور جویریہ ان کے اسٹارٹ ریڈنگ بیٹے. یہاں کے مسلمانوں کو اس یہ فریب آپ کی کی وجہ آواز سے نہیں آ رہی. یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی. اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک بھی شروع کی. چلیں پھر آگے آپ 19 پڑھیں فاطمہ، آپ پڑھیں بیٹے. پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا. پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا. چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی. 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی. آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. چلیں شعیب بیٹے آپ پڑھیں. یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں. ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے. اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے ذرا وسعت پیدا کر کے، وسعت کا مطلب ہوتا ہے ذرا کھول کے، پھیلا کر، ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا، وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے. یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے. قومیت کی دوسری ٹھیک ہے.
फातिमा आगे आप पढ़िए बेटे। फातिमा पढ़िए। कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई, जो मगरिब की तस्वुर कौमियत से जुदा है, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से ना कर ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है, और इस नज़रियाती पहलू को नुमायां करने के लिए इससे मिल्लत कहा गया है। ऐसी नज़रियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जोग्राफियाई खिते के लोगों के लिए जगह होती है, और हकीकत ये है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ जोग्राफियाई खितों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बन कर रहना मंजूर न था जो इस्लामी कौमियत के बरअक्स ज़ात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई हो थी। चुनांचे उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नज़रिया ज़िंदगी, अपने तर्ज़ माशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। चैलेंज वेरी आगे पढ़े। हमें इस बात को भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। अख़ुवत, मसावत, अदल, दयानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार के बगैर नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ नहीं हो सकता। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थीं। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरोीज व इशाअत और अहले आलम के लिए मसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। बस वेट पाकिस्तान का करें। यहाँ तक अभी मैं पढ़ती हूँ, इसका एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली। हिंदुओं ने अपनी जमात जो थी कांग्रेस, उसको बनाया और उसकी बुनियाद डाली, और ये जाहिर किया, उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि ये जो जमात है ये तमाम इस मुल्क में रहने वालों के तमाम लोगों के लिए उनके हकूक की हिफाजत करेंगे। लेकिन कुछ अरसे बाद लोगों को पता चला कि ये जमात जो है सिर्फ अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है हिफाजत, अपने यानी कि कौम का, हिंदुओं का ही सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी, उनकी कौमियत का, उनके हकूक का, उनके रहने सहने के तरीकों के बारे में उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी। अब हिंदुओं ने मुसलमानों को उनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की, और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज हो गए। हिंदू जो थे वो जब अपने सारे इस पर काबिज हो गए, और उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों को कारोबार से जो भी काम वो करते थे उनसे दूर करने की कोशिश की, और जो गवर्नमेंट की मुलाजमतें थी, हुकूमत की जो मुलाजमतें थी, जो कि सरकारी मुलाजमतें थी, उन पर खुद वो बुराजमान हो गए। इट मीन्स के हिंदुओं ने मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता सरकारी ओहदों से दूर करना शुरू कर दिया, और हर चीज पर वो खुद भी काबिज हो गए। नीज का मतलब है और उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़बान, मुसलमानों की जो मिली जुली, मुश्तरका का मतलब है मिली जुली, एक इकट्ठी दोनों की जुबान जो है वो उर्दू के मुकाबले में किसको कायम कर दिया? हिंदी को। हिंदू जो थे, हिंदुओं ने फिर अपने लिए अपने मुल्क में हिंदी जुबान को रिवाज देने की कोशिश की, और यही कहा कि इसकी बजाय उर्दू की बजाय हिंदी जुबान को कायम किया जाए। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और उनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की, और उनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। यानी कि मुसलमानों के लिए दीनी तालीम के लिए एक मदरसा था जो कि देवबंद में हिंदुस्तान में कायम था। उसने उनकी
दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी गई उनकी। फिर सर सैयद के एक रफीक, रफीक क्या होते हैं? दोस्त। सर सैयद के एक दोस्त नवाब वक़ारुल मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। अब ये देखें 1885 में जो थी वो कांग्रेस बनी थी, और 1906 में जो मुस्लिम लीग है, कुल हिंद मुस्लिम लीग, जो कि हिंदुस्तान के बरसगीर के लोगों के मुश्तरका मिलकर बनी थी, उसको कुल हिंद मुस्लिम लीग कहा जाता है। इसकी बुनियाद 1906 में। ये जो डेट्स हैं इनको अंडरलाइन जरूर कीजिए। कांग्रेस के एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि कांग्रेस की जो बुनियाद थी ये किस साल में हुई, उसमें 4 साल दे देते हैं आप लोगों को, और उसमें 4 उनके ईयर्स होंगे जिनमें से एक आपने ठीक करना होगा, जो कि ये, इसको अंडरलाइन करें। इसी तरह जो मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग है ये किस साल में कायम हुई, इसमें भी 4 साल आ जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपने एक को ठीक करना है। सो इसको, इन चीजों को अंडरलाइन बुक में किया करें, हाईलाइट किया करें कि ये जो ईयर्स हैं ये आपको याद रहे। ये तंजीम कहाँ कायम हुई थी? ढाका में। ढाका जो कि बरसगीर पाको हिंद में ही पाकिस्तान का एक हिस्सा था, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये मशरकी पाकिस्तान था उस वक्त, और उसका जो सदर मुकाम था वो ढाका था। ढाका में कायम हुई, जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को ज़िक पहुंचाने की, ज़िक का मतलब होता है नुकसान, नुकसान पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमान जो थे ज्यादा तादाद में थे, अक्सरियत का मतलब होता है मुसलमान जिस जगह पे ज्यादा तादाद में थे, उसको खत्म करवा दिया। 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल कर दिया। इसी जमाने में पहली जंग अजीम छिड़ गई। पहले जंग अजीम कब शुरू हुई थी? अभी नीचे लिखा हुआ है 1914 में, 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई थी, तो और 1919 में खत्म हुई थी। ये भी आपने लाइन्स, इसकी डेट्स याद करनी है कि 1914 में जंग अजीम पहली जो थी, अव्वल जंग अजीम शुरू हुई थी और 1919 में खत्म हुई। ये ऐसी अनसीन अननोन सी एमसीक्यूज वो दे देते हैं। सो सारे जो बच्चे अब ज्वाइन कर चुके हैं मैं उनकी तरफ तो अटेंडेंस ले लूँ। दूसरे ये कि ये सारी बातें अपनी नोट करते जाएं और अपनी उसमें हाईलाइट करें अपने उसके बुक्स में, मीनिंग्स लिखे अपनी बुक में। आमना आप लेट आए हो बच्चे? हुसैन ठीक है। अब जब पहली जंग अजीम छिड़ी थी तो उसमें अंग्रेजों का मुकाबला किससे हुआ था? जर्मनी से। जर्मनी का जो हिटलर था और उनके साथ उनका मुकाबला हुआ, और इसमें तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। तुर्की की जो मुसलमान हुकूमत थी उसने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे रहने वाले, वो चूंकि तुर्की को हिजाज मुकद्दस, जो कि रोजा अल्लाह का घर है, उसको खिदमत करने की वजह से उसे खलीफा इस्लाम तस्वुर करते थे कि तुर्की ने जब वहाँ खाना काबा की तामीर में, उसकी तरक्की में बहुत मदद की थी, तो इसलिए वो इस वजह से इसको खलीफा इस्लाम समझते थे उसके हुक्मरान को। इसलिए उन्होंने माली तौर पर भी और तिब्बी और मेडिकल तौर पर भी मदद पहुंचाई उनकी, तुर्की की, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से इनाद पैदा हो गया। इनाद का मतलब होता है दुश्मनी। अब जब मुसलमानों ने हिजाज की खिदमत की वजह से तुर्की के मुसलमानों की खिदमत की, तो इस वजह से जो बरतानिया की हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत जो थी, उसको मुसलमानों से वो इस वजह से वो दुश्मनी का उनका सबब बन गया। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया? एक वादा किया कि हम जो है इस जंग में अगर फतह हासिल करेंगे तो हम किसी भी तरह से तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि उन्होंने सिर्फ इसलिए इनका साथ दिया, मुसलमानों को अपने साथ मिलाया कि अगर इस जंग में उनको फतह हासिल होगी तो वो तुर्की को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये वादा जो था महज सिर्फ एक फरेब था, झूठा सा वादा था उन्होंने किया, कोई सच्चा वादा नहीं किया था। चुनांचे जब अंग्रेजों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए, वो अपने वादे से मुकर गए, वो छोड़ दिया उन्होंने उस वादे को,
اور انہوں نے ترکی کی وسیع یعنی کہ بڑی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی کہ اس کی جو سلطنت تھی، جو سلطنت عثمانیہ ہے، وسیع سلطنت، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ کئی ملکوں میں بٹ گئی۔ یہاں کے مسلمانوں کو یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس فریب، اس دھوکے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ ہندوستان میں آپ نے پاک اسٹڈیز میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب تحریک خلافت شروع کی گئی جو کہ ترکی کی حکومت کے حق میں تھی، اس کو کس کی رہنمائی میں شروع کیا گیا؟ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں۔ اب پھر اسی زمانے میں جو تھے ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے سرگرم ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا، شدھی کی ایک تحریک شروع کی جس میں وہ مسلمانوں کو ہندو بناتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کون سی تحریک شروع کی؟ سنگٹن کی، آپ کی پاک اسٹڈیز میں بھی ہوں گے یہ دونوں نام، کہ سنگٹن کی تحریک جو تھی ان کو ختم کرنے کے لیے، اور ہندوؤں کو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی۔ ان کو بھی انڈر لائن کریں گے، امپورٹنٹ ہے دونوں چیزیں۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس کو انڈر لائن ضرور کرنا ہے، کس ایئر میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی۔ اب آپ کے لیے ایم سی کیو میں کوشچن اکثر و بیشتر آ جاتا ہے کہ اس میں 4 آپشنز آ جائیں گی، 1928، 1930، 1927، 1926۔ آپ کی صحیح ایم سی کیوز اگر آپ نے اپنی بک میں ہائی لائٹ کیا ہوگا تو آپ کو ایزیلی اس کا جواب ریڈ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں رہے گا۔ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی، اور اس میں مسلمانوں کے لیے جو علیحدہ نمائندگی تھی، اس اصول کو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی کہ اس نہرو رپورٹ میں کہ جی مسلمانوں کو اس ملک میں ایک باقاعدہ قومیت کے طور پر جانا جائے گا۔ اس اصول کو انہوں نے 12 سال پہلے جو مانا تھا بالکل نظر انداز کر دیا، بالکل بھلا دیا۔ نظر انداز کر دینا، اس کو بھول جانا، اس کو چھوڑ دینا، اس چیز کو چھوڑ دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت کیا ہوتی ہے؟ رہن سہن، جس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں مسلمانوں کا رہن سہن تھا، جس طریقے سے لوگ وہاں اپنی زندگیاں گزارتے تھے، اپنی عبادات کرتے تھے، اس کو معاشرت کہا جاتا ہے کہ رہنے سہنے کا جو طور طریقہ تھا سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے۔ اس لیے کسی بھی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا، ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ یہ لائن پوری آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے کیونکہ اس میں کوشچن بھی ہے کہ علامہ اقبال نے کس سال اور کہاں مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس سال میں تجویز دی گئی علامہ اقبال کی طرف سے، اور اس میں یہ سال ہے 1930، اور کس جگہ میں تھی؟ الہ آباد۔ اب 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے قبول کیا، تو انہوں نے اس تجویز کو، اس جو مشورہ تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ عملی جامہ پہنانا، پورا کرنا اس کام کو، اس جو منصوبہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے پوری کوششیں شروع کر دی، اور آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمان یعنی کہ جن علاقوں میں زیادہ تعداد میں ہیں، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اب اس اعلان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرارداد پاکستان، جس کی روح سے، جس کے نظریے کی روشنی میں مسلمانوں کو کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست یا حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب انہوں نے اس چیز کو مان لیا، اور انہوں نے کہا جن علاقوں میں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں ان علاقوں کو
एक आज़ाद मुसलमान वहाँ अपनी आज़ाद हुकूमत बना सकते हैं और खुद मुख्तार अपनी वहाँ आज़ादी से जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि दुनिया में कौमियत की दो बुनियादें हैं। अब पूरी दुनिया में कौमियत की दो बुनियादें हैं। एक वो जो मगरबी मुफक्करीन ने कायम की है, मगरबी ने, वेस्टर्न लोगों ने जो कायम की है, वो दूसरी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की है। मगरिब के लोगों ने कैसे कायम की है कि खानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में जरा वुसअत पैदा करके, जरा फैलाव पैदा करके कौमियत की बुनियादें जो राफियाई हदूद पर कायम की, उस्तवार की, कायम की, और कहा कि कौम वतन से बनती है। यानी कि उन्होंने कहा जिन जगहों पे खानदानी लोग, वो अंग्रेज ज्यादा है, उनमें कबायली ज्यादा है, उनको जरा थोड़ा सा फैला लिया और कहा कि जिन जिन इलाकों की बुनियादों में ये लोग रहते हैं, उस एरिया में वो इस तरह से उन्होंने अपनी कौम को वतन से कहा कि कौम जो है वो वतन से बनती है। इस नजरिए की वजह से दुनिया के इंसानों में के दरमियान जो तबाही का दरवाजा खुला, वो किस शक्ल में जाहिर हुआ? दो आलमी जंगें हुई। एक आलमी जंग पहले तो तुर्की और जर्मनी और बरतानिया के दरमियान हुई, और दूसरी जो जंग थी वो आलमी जंग, वो भी इसी वजह से बनी कि इलाके की जगह पर कि हमें इस इलाकों में हमारी जो है वो हाकमियत ज्यादा है, तादाद में ज्यादा है, तो इस वजह से वो दूसरी आलमी जंग भी लड़ी गई। अब ये दोनों जो जंगें थी, ये वतनी कौमियत की, वतन और कौम की बुनियाद पर लड़ी गई थी, और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, उनका हिफाजत करने में, उनको महफूज रखने में तो बिल्कुल ही नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान जो थे इस नजरिए की वजह से मजबूर तौर पर एक अक़लियत बन जाते, कम तादाद में एक कौम बन जाते जो कि उनको मंजूर नहीं था। अब कौमियत की जो दूसरी बुनियाद है वो किसने कायम की? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसके तहत उन्होंने कहा कि ये अलग है उससे जो कि वेस्टर्न उनका नजरिया था, मुफक्करीन का, सोच रखने वालों का। और इसको अल्लामा इकबाल ने इस तरह कहा कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। इनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इंसार, कौम मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। यानी कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपनी कौम, अपनी मिल्लत पर क़यास जो है, क़यास होता है भरोसा, यकीन, कि अपनी मिल्लत पर क़यास दूसरी कौमों से, मगरिब की कौमों से ना करो। जो ये मुसलमान कौम है तरकीब रसूल हाशमी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है, और ये उनके रसूलों पर कायम है, और ये सिर्फ मुल्क और नसब पर इंहिसार उनकी जमीयत पर होता है कि जिस जगह ये ज्यादा तादाद में होंगे, क्योंकि इनका मजहब जो है वो एक मुस्तहकम मजहब है, मजबूत मजहब है, तो इससे जमीयत भी मजबूत होगी। नेक्स्ट अब आप पढ़े, आप हुसैन, बेटे आप पढ़िए आगे। मुसलमानों की कौमियत, हुसैन। मुसलमानों की कौमियत एक नजरियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक नजरिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है, और इस नजरियाती पहलू को नुमायां करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। ऐसे नजरियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जुगराफियाई खित्ते के लोगों के लिए जगह होती है, और हकीकत ये है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ जुगराफियाई खित्तों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मुत्तहिद अक़लियत बनकर रहना मंजूर न था जो इस्लामी कौमियत के बरक्स जात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी। चुनांचे उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नजरिया ज़िंदगी, अपने तर्ज मुआशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। चले आमना, आगे आप पढ़े। हमें इस बात को
ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہو پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور امن پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے علیم بیٹے آپ آگے پڑھیں۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کے فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور عظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ جی اب اس میں ہے جی یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی قومیت، مسلمانوں کی جو قوم کی بنیاد ہے وہ ایک نظریاتی قوم ہے، نظریاتی ایک آئیڈیالوجی قومیت ہے جو کہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ یعنی کہ یہ جو قومیت بنیاد میں آئی، وجود میں آئی، یہ کس طرح ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ کی بنیاد پر وجود میں آئی، یعنی یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، جس کو کہ آپ پاک اسٹڈیز میں کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے نظریہ پاکستان۔ پاکستان کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ کس بیس پر بنی کہ وہ کلمے کی بنیاد پر بنی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا اور اسی نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے، نمایاں ظاہر کرنے کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا۔ ملت یعنی کہ ایک قوم، ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ ایسی قوم میں اس میں تخصیص نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان ہی ہوں گے، بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ ہر نسل اور ہر رنگ کے جو لوگ ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اسی لیے پاکستان میں ہر قوم کو اپنے اپنے مذہبی حقوق، اپنے اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ ہمارا جھنڈا جو ہے وہ بھی ان چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ گرین حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید حصے میں وہ اقلیتوں کی، جو کم تعداد میں لوگ یہاں رہتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور اس
और हकीकत ये है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ जोग्राफियाई खित्तों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर ना था। मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर ना था, उनके अंडर, उनके लिए, उनके नीचे रहकर, मातहत का मतलब था उनके नीचे रहकर, उनके हुक्म के ताबे रहकर इस तरह मंजूर ना था। कौम अक़लियत होती है थोड़ी कौम में, थोड़ी तादाद में, कम तादाद में रहकर मंजूर ना था, जो इस्लामी कौमियत के बरक्स, उल्ट, बरक्स का मतलब होता है उल्ट, जात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी। हिंदुस्तान में जो लोग थे वो जात पात के झगड़ों में उलझे हुए थे और बुत परस्ती में और छूत छात के बंधनों में वो जकड़ी हुई कौम थी, क्योंकि वहाँ जो हल्की जात के लोग थे उनको भी किसी तरह की इज्जत नहीं दी जाती थी, और उनका अपना जो ऊंची जात वाले ब्राह्मण हजरात थे वो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते थे, इसलिए इनका उनके साथ रहना नागजीर था। इस वजह से इस कौम के लिए इसका नजरिया बनाया गया पाकिस्तान के लिए कायम करने के लिए। चुनांचे उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नजरिया जिंदगी, अपने तर्ज मुआशरत, अपने रहन सहन के तरीकों के मुताबिक, इस्लामी तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजार सके और एक मुसलमान की हैसियत से दौरे जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सके, बेहतर बना सके। अब आखिर में वो कहता है कि हमें इस नजरिए की बदौलत क्या क्या कुछ करना है और इसमें कैसे इसको हम बढ़ा नहीं सकते। जब तक हम इन चीजों पर अमल नहीं करेंगे, इस आइडियोलॉजी को, इस नजरिए को हम बेहतर नहीं बना सकेंगे। हमें इस बात को भी अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए, अपने जहन में बिठा लेना चाहिए और कि नजरिया पाकिस्तान में इस्लामी जिंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है, मरकजी हैसियत रखता है। अखुवत का मतलब होता है भाईचारा, मसावत, बराबरी, मीनिंग्स लिखते जाइए बेटा। भाईचारा, बराबरी, अदल का होता है इंसाफ, दयानत, सच्चाई, ईमानदारी, खुदा तरसी, अल्लाह ताला के लिए रहम करना, और दूसरा है इंसानी हमदर्दी, इंसानियत की बुनियाद पर लोगों से हमदर्दी करना, और अजमत किरदार की अजमत, यानी कि इंसान जो है अपने किरदार को जब तक बुलंद नहीं रखेगा, अपना किरदार उसका हर तरह की बुराई से पाक नहीं होगा, तो ये पाकिस्तान के नजरिया या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को फैलाया नहीं जा सकता, फरोग नहीं हो सकता, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको फैलाया नहीं जा सकता। नजरिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना नहीं था। अब ये सिर्फ एक हुकूमत या एक मुमलिकत कायम करना नहीं था, बल्कि क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें जो थी एशिया और अफ्रीका दोनों में पहले से मौजूद थी, बल्कि नजरिया पाकिस्तान का मकसद, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें क्या था, इस्लामी असूलों की तरवीजो अशात, तरवीज होता है राइज करना, उन असूलों को कायम करना, और अशात फैलाना, और अहले आलम के लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। यानी कि सिर्फ ये नहीं था कि हमने कायम कर देना है मुल्क, बल्कि जब तक इसके अंदर हम अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक अपने तर्ज मुआशरत को उनको राइज, जब तक इस्लामी असूलों को ना करें, अपने असूल कायम ना करें और उनको फैलाएं ना, तो फिर ये दुनिया वालों के लिए एक मिसाली मुमलिकत का नमूना बन जाती। पाकिस्तान कायम करने का फैसला हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मुमलिकत कायम ना होने पाए। उनके पास दौलत और ताकत थी, जनूबी एशिया में उनकी अक्सरियत थी, यानी कि वो ज्यादा तादाद में थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का क़याम का मुतालबा सच, हक का मतलब होता है सच और इंसाफ पर मबनी था, उसकी बुनियाद पर था ये मुतालबा कि पाकिस्तान कायम किया जाए, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा। बरतानिया की क्योंकि उसमें हुकूमत थी, अंग्रेज यहाँ आकर करते थे, लॉर्ड वायसराय जो था
वहाँ का, वो यहाँ आकर लॉर्ड वायसराय के तौर पर काम किया करता था। तो हुकूमत बरतानिया के अंडर ही जो थी ये बरसगीर पाको हिंद के जो लोग थे वो अपने जिंदगियां गुजारते थे। इसलिए हुकूमत बरतानिया को इस बात से मजबूर होना पड़ा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पुरखुलूस यानी कि सच्ची क़यादत रहनुमाई, क़यादत का मतलब है रहनुमाई में मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमल पहम होता है मुसलसल काम करने, मुसलसल जद्दोजहद की वजह से। कहाँ कब बना पाकिस्तान? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारज़े वजूद में आ गया, कायम हो गया, बन गया। अब पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। और अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज्यादा तरक्की करे और हमेशा तरक्की करे, तो हमें हर वक्त किसको नजर में रखना पड़ेगा, अपने सामने रखना पड़ेगा, इस पाकिस्तान के बनने के नजरिए को, आइडियोलॉजी को, कि ये पाकिस्तान किस बुनियाद पर वजूद में आया। और ये जो वजूद में लाया गया, ये पाकिस्तान एक नजरियाती कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में है। इस नजरिए को हम अपने हमेशा सामने रखें। इसी की बदौलत, इसी की वजह से हम पाकिस्तान को ज्यादा मजबूत, मुस्तहकम होता है, मजबूत और शानदार यानी अजीम बना सकते हैं। नजरिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है, फलाही भलाई वाली हुकूमत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मुफाद के सामने जाती मुफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। आज हम इस तरह नहीं करते ना, हमारे हुक्मरान भी ये कुछ नहीं करते। कौमी मुफाद की बजाय सबको अपने अपने जाती, अपनी जात के मुफाद की फिक्र होती है। हर शख्स अपने जात के लिए सोचता है और जब ये चीज सोच में आ जाती है तो वो वतन या वो कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो अपने जाती कौमी मुफाद को सिर्फ सामने रखना है और जाती मुफाद को छोड़ देना है। हर किस्म की ग्रुप बंदी से बालातर हो गए। ग्रुप, जितने भी ग्रुप बाजियां हैं उनको खाली करके पाकिस्तान की हमेशा तरक्की और भलाई के लिए कोशिश करनी देनी चाहिए और इसी को फरोग देना है, इसी को बढ़ाना है। अगर हमने नजरिया पाकिस्तान को अपने सामने रखा, पेश नजर रखा, अपने सामने रखा और अपनी सीरत और किरदार के मुताबिक इसको ढालने की कोशिश की तो दूसरी दुनिया की कौमों की तरह हमें भी नुमाया मुकाम हासिल होगा और हम पाकिस्तान को एक इस्लामी उसूलों की रोशनी में एक मजबूत, मुस्तहकम और शानदार बनाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ओके बच्चों, ये आपको मैं चैप्टर कंप्लीट करा दिया। इसके वर्ड मीनिंग्स याद कीजिए, मेरे नेक्स्ट क्लास में इसके वर्ड मीनिंग सुनने हैं और इसका जो MCQ वाला पोर्शन है वो आपने इसको पढ़ना है और इसको रीड दोबारा करना है ताकि मैं आपको इसके वो जो डेट्स वाला मैंने आपको अंडरलाइन करवाया वो इसका मैं सुनूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों।